because the task of nation building is very, आपको स्पॉटलाइट कर दो ना। हाँ ठीक है, एक मिनट है बेटा, मैं अपने आप को स्पॉटलाइट कर देती हूँ एक बार। ठीक है, अब हो गया बेटा? हाँ मैम। हाँ चलो डन। अब मैं स्पॉटलाइट में हूँ, सबको दिख जाऊंगी अच्छे से। ओके, सो ही वाज लाइक नॉट होली और नॉट इन फुल मेजर। इट मींस दैट इंडिया बीइंग अ वेरी बिग कंट्री कैन नॉट बी अचीव फुल्ली। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक ही बारी में, नेशन बिल्डिंग जो था वो एक ही बारी में हम अचीव नहीं कर सकते। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ सब कर लें, बट सारा नहीं हो पाएगा। नाउ what pledge did he want the makers of the Indian Constitution to take? The pledge for dedication to the service of India and people and her people, and to the service of India and her people and to the humanity. वो आपको जिन्होंने स्पीच नहीं पढ़ी है उनको कुछ भी नहीं आएगा। The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear for everyone. Who he was referring to? हमारी जनरेशन का, उस जनरेशन का ग्रेटेस्ट मैन कौन था? महात्मा गांधी। हाँ, तो he was referring to महात्मा गांधी. He was referring to महात्मा गांधी. He was referring to Mahatma Gandhi. Now, here are some of the guiding values of the Constitution and their meaning. Rewrite them by matching them correctly. Sovereignty. कुशम हाथ क्यों रेस किया बेटा? हाँ बोलो। आंसर के लिए। Sir, people have the supreme right to make decisions. No. People should. Sorry. Right. People have the supreme right to make the decisions. Next by Rashvi. Third by Mahi. कुशुम हैंड डाउन करो तुम। राशवी। यस मैम। बोलो ना भाई। रिपब्लिक। हेड ऑफ द स्टेट is an elected person. Head of the state is an elected person. Mahi. Fraternity. Fraternity. People should live like brothers and sisters. Ma'am, can I answer Bhavya? अरे बेटा लास्ट वाला तो वैसे ही सेक्युलरिज्म एक ही तो रह गया, गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। नेक्स्ट, हियर आर डिफरेंट ओपिनियन अबाउट व्हाट मेड इंडिया ए डेमोक्रेसी, हाउ मच इंपॉर्टेंस वुड यू गिव टू ईच ऑफ देम। Like democracy in India is a gift of the British rulers. We received training to work with representative legislative assembly under the British rule. अब इसमें दो सेंटेंस, अगर आप फर्स्ट सेंटेंस देखो ना तो वो राइट नहीं है। अब बेटा इसमें ने एक बच्चा वेटिंग रूम में खड़ा है, अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है तो पूछना, केनिट नाम लिखा है। नो मैम 5F करके कुछ लिखा है, तो उसको मैं नहीं ले रही हूँ। तो तुम्हारा अगर कोई फ्रेंड बोलता है कि मैं वेटिंग रूम में, तो उसको बोलना करेक्ट आईडी से एंटर हो। सो द फर्स्ट पार्ट, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज अ गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, दैट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। यस, इज नॉट गिफ्ट, हमको ऐसे अच्छे से दे नहीं दिया उन्होंने, लो बेटा लो इंडिया वाले तुम डेमोक्रेटिक हो जाओ। We have to fight a long struggle for that. Secondly, we received training to work with the representative legislative institution under the British rule. Okay. So at that time, we received the training. Yes, we cannot ignore that. It helped. I am not telling you we received the training, but yes, we cannot ignore. Few of our leaders have worked under the legislative institute under the British rule. So at least we were aware of that कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री का रूल कैसा होता है, सिस्टम कैसे काम करता है। पर हाँ, ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने बहुत अच्छे से हमें पार्लियामेंट में बुलाया, बैठाया और सिखाया, ऐसा नहीं था। ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल चैलेंज द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड डेनियल ऑफ डिफरेंट फ्रीडम्स टू इंडिया। Free India could not be anything but democratic. तो ये क्या आएगा इसमें?
Ma'am, it is true. See, freedom struggle challenge the colonial exploitation. Of course, हमारी freedom struggle ने हमने colonial exploitation को challenge किया था कि नहीं? Yes, ma'am, किया था. And Daniel to defer freedoms to India. यानी हाँ, हमने freedom हमें चाहिए था, तो that is true. We have fought, हमने challenge किया था, हमने उनसे मतलब challenge किया था कि ये हमारे लिए सही नहीं है, तो हम इसको accept नहीं करेंगे. Yes? Yes, ma'am. ठीक है. दूसरा पार्ट क्या था इसका? The Daniel of democracy in several other free India could not be anything but a democratic. That is also true. We were democratic only. हम जब free हुए तो हम आजाद देश बन गए कि नहीं बन गए? Yes, ma'am, it is. हमने किसी और को जगह दिया अपने, या हमने ब्रिटिशर्स को मर्ज किया अपने साथ रूल करने के लिए? नहीं. We are lucky to have leaders who had democratic convictions. So that is true, because some leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Motilal Nehru, Maulana Abdul Kalam Azad. So we have a great leaders, yeah, who fought for the democracy. The Daniel of democracy in several other newly independent countries shows the important role of the leaders. Yes, क्योंकि कई देशों में कैसा हुआ था, जैसे हमने मुशर्रफ का देखा पाकिस्तान में, फिर हमने, तो जो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लीडर्स हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट्स नॉट ओनली दैट द पीपल, बिकॉज इन पीपल को यूनाइट करना, एक कॉमन एजेंडा रखना, है ना, ये सब एक लीडर का काम है. सबको साथ लेके आना, स्ट्रैटेजी बनाना, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, ऐसा. Read the following extract from the Conduct the Book of Married Women published. ये सब ऐसा सब नहीं आएगा एग्जाम में तुम्हारे. Read the following statement about the Constitution. Give reasons why each of this is true or not. The authority of the rule of the Constitution is same as that of any other law. It is not true. Constitution किसी और law से compare नहीं कर सकते, because Constitution itself is a set of rules and regulations. आप उसे किसी एक इंडिविजुअल रूल या लॉ से कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि तो खुद ही सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है और हमको उसके अंदर काम करना है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी द सुप्रीम लॉ. उससे बड़ा कोई लॉ नहीं है हमारे कंट्री में. सो सेम एज दैट ऑफ एनी अदर लॉ तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज वो सुप्रीम लॉ है. Constitution lays down how different organs of the government will be formed. Yes, true. हमने देखा ना, legislative, executive, judiciary. ये constitution में clearly mentioned है. उनके rights क्या हैं, उनके duties क्या हैं, उनके core areas of performance क्या है. Rights of the citizen and limits on the power of the government are laid down in the Constitution. Yes, true. Rights of the citizen in the form of fundamental rights. है ना? Yes, ma'am. और जब वो जो laid down, second part is the government are laid down in the Constitution. The powers of the government are in the form of the organs of the government, legislature, executive and judiciary. सबके powers दिए हैं कितना काम करना है. A constitution is about institution, not about values. Not true, because constitution की values हैं, है ना? Yes, ma'am. Yes, It contains all values because it tried to include every citizen, every individual. अब मैं ना बेटा जो वर्कशीट लूंगी ना, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस वेरी स्ट्रेट अवे. प्लीज बी वेरी क्विक टू आंसर इट, तो फटाफट खत्म हो जाएगा. ये वर्कशीट गई आप लोगों को? यस? Okay, define epithet or what does epithet means? ये आपकी बुक में दिया है दूसरे पेज में. Yes, who is raising hand? Rashmi. The official policy on racial separation and ill-treated on blacks followed by the government of South Africa between 1948 and 1989. Next, why was Nelson Mandela imprisoned? ये वर्ड मैंने समझाया था. For treason, है ना? नेल्सन मंडेला को किसने इम्प्रिजन किया था? For opposing the British government.
Write a note on apartheid prevailing in South Africa, or how was apartheid system practiced in South Africa. क्या होता था apartheid system में? Ma'am, they are different places. हाँ? Yes, Ahana. Ma'am, apartheid means difference between Yes, discrimination on the basis of racial and on the skin of color. So whole country was divided, yeah, on the basis of skin color, and specified areas were kept for the white people and the black people. Separate areas were kept. and What ma'am, type of yes? white people get more facilities than black people. What type of treatment was given out to the non-whites under the apartheid system in South Africa? Ma'am, can I, Mahi? Yes, फटाफट. निर्मित, इसके बाद वाला क्वेश्चन रेडी रखो. Ma'am, if someone enters in the white people's property, the black people enter, then they kill the black people and give the black people to the dogs, so that we can't found. We will get missing reports only. We will not found. अरे नहीं बेटा, तुमको तो जो वो बैनर दिया उसके हिसाब से नहीं लिखना है, ओवरऑल लिखना है यहाँ पे. What type of treatment? It was a very oppressive treatments to them. Yeah, they were not allowed to go to any of the white areas, and if they want to go, just they need to permit to go there. So they have been forbidden to go to the white areas. Yeah. Next, Nirmit. Ma'am, the African National Congress is the governing party of the Republic South Africa. It has been in power since the election of former lawyer turned political prisoner. Very good. Okay. How did apartheid end in South Africa? Here. The protests and struggles against apartheid had increased. The government realized that they could no longer keep the black under their rule through repression, as the black people were in majority. Yes. Now, when एक मिनट, वेटिंग रूम में अब कौन है? धैर्य को तो ले लूंगी, आई नो दिस पर्सन. ये पता नहीं कौन है. Next is when was okay, on what basis South Africa wanted to build a new nation? Rashvi. In New South Africa, based on equality of all races and men and women, on democratic values and social justice and human rights. Very good. Next is when was the Constitution of South Africa completed? Mahi. After 2 years of discussion and debate, the Constitution of Constitution came out with one of the finest constitution of the world. Yes. Now, mention a distinguished feature of a newly formed South African Constitution. South African Constitution का feature क्या था? कोई एक ऐसा feature बता सकते हो? Nirmit. And the Republic South Africa is the parliamentary republic with 3-tier system of government and independent judiciary. उसका यूनिक फीचर क्या था बेटा? उन लोगों Ma'am, ने most extensive rights were given to all the citizens. Parliamentary system, right? हाँ, parliamentary system and extensive rights. मतलब ऐसा नहीं था कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी या कुछ ऐसा नहीं था. जो भी थे वहां पे सबको इक्वल राइट्स और इक्वल ग्रोथ था. वो एक उसका डिस्टिंक्ट फीचर था. मतलब उन्होंने देखो व्हाइट्स को भी इक्वली दिया, जबकि वो 1/3 थे, माइनॉरिटी थे. Yes, ma'am. What is the title of the autobiography of Nelson Mandela? Dipti. Long Walk to Freedom.
Next, define constitution. Mayank. Supreme law of a country containing fundamental rules governing the politics and society in a country. Write one note on write a note on importance of constitution, or why do we need a constitution? Why do we need a constitution? Nirmit. Can I answer, ma'am, Bhavya? Bhavya, bolo. Yes, ma'am. In the textbook, there are 4 points given. So, ma'am, I'm just saying that. Yes, all the First, 4 points you are supposed to write. Yes, ma'am. Okay. Describe the political problem that arose in India soon after the independence. ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पैराग्राफ है ना, उसमें है ये. हेलो. Yes, ma'am. मैम किस एक्चुअली नाम वो नहीं समझ आ रहा, शायद इसलिए नहीं लिया होगा. नहीं मैम, वो दिया नाम का बच्चा कोई भी मेरे पास वेटिंग रूम में नहीं. कोई कैनिट करके बच्चे से एंटर की, मतलब कोई बंदा है जिसने कैनिट लिखा है, तो मैं कंफ्यूज हो गई, इसलिए मैं नहीं आने दे रही हूँ बच्चे को. आप एक बार श्योर कर लीजिए उसने उसी नाम से एंटर किया है. हाँ, एक ही बच्चा है वेटिंग रूम में, कोई बंदा है, वो कैनिट लिखा है उसने. हाँ जी. नहीं मैम, वेटिंग रूम में एक ही बंदा है. मैंने स्क्रीन शेयर किया, मैंने बच्चों को मैंने पूछा ये नाम तुम जानते हो किसी को, करके स्क्रीन शेयर करके ऐसा. 5F कैनिट क्या लिखा हुआ है मैम, ऐसा ही कुछ उसने. अच्छा हाँ, मुझे वो समझ नहीं आ रहा था, बहुत अजीब सा नाम लगा ना, मैंने बच्चों को भी पूछा मैम, इसलिए. ठीक है, मैं ले रही हूँ मैम, ले रही हूँ. हाँ, ओके. चलो 1 मिनट बेटा, 1 मिनट. अब चलेंगे, हमारा कौन सा क्वेश्चन रह गया था, 1 मिनट. मैम 14th. How was making of constitution in India easier than of South Africa? नहीं बेटा, उससे पहले वाला भी बाकी है, ये वाला. डिस्क्राइब द पॉलिटिकल प्रॉब्लम दैट अरोज इन इंडिया सून आफ्टर इंडिपेंडेंस. यहाँ पे पता है पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में क्या लिखना है? पार्टीशन लिखना है, और वो प्रोविजनल, वो स्टेट्स थे ना, डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स. क्या है? प्रिंसली स्टेट्स नहीं थे बेटा, जो ना इंडिया के पार्ट थे ना उसके Yes, पार्ट थे, वो Yes, ma'am. उसके Yes, बारे में ma'am. लिखना है. हाँ, उसके बारे में लिखना है. Here you have to write about that. Now, next 14. How was making of the constitution in India easier than of South Africa? Easier कब हुआ था हमें? निर्मित बेटा थोड़ा फास्ट चलो, आज पूरा पीरियड इसमें चला जाएगा लगता है. Like South Africa, India's constitution was written under very difficult situation. The making of constitution for such a huge and diverse country like India is not an easy task. यहाँ पे वो नहीं लिखना है, क्वेश्चन पढ़ो. इजियर कैसे हुआ था? How it is easier? For India, it was easier because we have started our constitution drafting so early only. 1931 वो दिया नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया था एक रफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें इक्वालिटी और वो सब वाला, वो पैराग्राफ है बेटा पूरा बुक के अंदर. Sorry. And there were people elected from different communities, so they know their problems and can. Explain the meaning of preamble and its significance. What is preamble? Dipti. Ma'am, preamble is an introductory statement in the Constitution which states the reason
and the guiding value of the constitution. Yes, and the guiding values of the constitution. Perfect answer. Define constituent assembly. हेतवी, नए नए हाथ आ रहे हैं. Yes, ma'am. An assembly of people represent that write a constitution for a country. नहीं, a drafting of the constitution by an assembly of elected representative is known as constituent assembly. Okay, next question is how many members were there in the constituent assembly? 299. 299. Very good. Who was the chairman of the drafting committee? Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar. What is a draft? Now, Draft piece of is a writing, etc. will be version of a probably piece of changed writing. and Version of the not constitution. phonetic version. And what is a clause? A distinct section of a document. Explain in brief the process of formation of constitution. ये थोड़ा long answer है. Yes, Mahi. Ma'am, the Constitution of India was formed through a process of formation of Constituent Assembly with draft, debate, deliberated, amended, and finally formed the final Constitution of India. The Constitution was adopted finally in November 1949 with the seal of the Constituent Assembly of India. Very good. Next, how difficult it was for India after a constituent for United India. एक मिनट, ये क्वेश्चन ही गलत है. How difficult it was for India after a constitution for United India after independence. How difficult it was for India. ये सेव करने के टाइम गड़बड़ हुआ इस क्वेश्चन में. ये क्वेश्चन काट देना बेटा. Okay. Which number, ma'am? Which number? 22. 23. Why should we accept the constitution made by the assembly more than 50 years ago? Why should we accept the constitution more than it is created more than 50 years ago? ये मैंने समझाया भी था, फिर भी नहीं आ रहा. आर्यन. We should accept the constitution made by the assembly more than 50 years ago because it contains all the rights in one time, and it was made by 299 people and it cannot be changed easily. But we can make some minor changes in it. See, we accept the Constitution of India after the 50 years, made more than 50 years ago, because this Constitution was not made by any specific group, but it was created by the people representing different groups of the country, so that they make it clear that not a single group or minority or majority has been left out. Describe the constitutional design of India. ये एक लंबा आंसर है. ठीक है, आपको पूरा डिजाइन बताना है. डिजाइन इन अ सेंस कि कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था. Next question is that write a short note on drafting committee. जैसे उन्होंने कितने डिबेट्स किए थे. Like it was a committee that prepared a draft of the constitution for discussion. Its chairman was Dr. B.R. Ambedkar. There were several rounds of thorough discussion of the draft of the constitution clause by clause. The members worked for 114 days spread over 3 years.
Later it was presented to the public to get their opinion. ओके नेक्स्ट इज, अब ये सब आपको डेफिनेशन लिखनी है। फिर से मैंने प्रियम्बल पूछा है, प्रियम्बल, सोवेरेनिटी, डेमोक्रेसी, ये वो पेज में साइड में नहीं दिया था बेटा? यस मैम। हाँ, तो वो सारे मैंने उस दिन डिस्कस भी इसलिए कराए थे कि आपको वो सारे चेक करने थे, आपको सारे याद रखने। ओके मैम। ओके मैम। ओके ठीक है, यस क्लियर। अब आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग अगर कंटेंट देखें तो 2 चैप्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस वी हैव डन है बेटा? यस मैम। देखो 2 चैप्टर ज्योग्राफी के हो गए, 2 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के हो गए, यस मैम। 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स के भी और 2 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स हो गए। हिस्ट्री का एक ही हुआ था, तो वो रशियन रिवॉल्यूशन और सोशलिज्म इन यूरोप अभी हम स्टार्ट करेंगे पहले, वो थोड़ा लंबा चैप्टर है। एक्चुअली अगर आपको थोड़ा याद हो तो ये काफी कुछ पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा नहीं था 3 टाइप्स ऑफ पीपल थे, लिबरल्स, रेडिकल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। यहाँ क्या पढ़ेंगे हम यूरोप में, कि जब यूरोप में चेंजेस आए तो इन तीनों ग्रुप के जो लोग थे, सोसाइटी मतलब क्या बेटा, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के लोग होते हैं ना सोसाइटी में, उन्होंने इन चेंजेस को और चेंज इन द यूरोप को कैसे लिया। आया समझ में कि नहीं आया मेरी बात? नहीं। So we will be starting with that. तब तक आई थिंक सो जब तक मैं चैप्टर पूरा करूंगी, मोस्टली इस चैप्टर को 3-4 वीक 3-4 क्लास लग जाएंगे। जब तक हम ये चैप्टर पूरा करेंगे ना बेटा, तब तक क्या होगा, मोस्टली सारे स्कूलों की यूटी खत्म हो चुके होंगे, तो हमें भी पता चल जाएगा कि आगे कैसे करवाना है कि क्या है। क्योंकि मैं ना अब मैम हमारे स्कूल में चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये वाला? यस मैम। कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगी। क्योंकि अब क्या है, आपका पॉलिटिकल साइंस में बेटा 2 ही चैप्टर रह जाते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड वर्किंग इंस्टीट्यूशन। सो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद के दोनों ये जो लास्ट के 3rd और 4th नंबर का चैप्टर नहीं, ये आपके 2nd टर्म में आएगा। सेम वे स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर एंड पीपल एंड रिसोर्सेज, ये दोनों चैप्टर ही आपके 1st टर्म में आएंगे। पॉवर्टी एज चैलेंज एंड फूड सिक्योरिटी 2nd टर्म में आएगा। हाँ, इसमें आ जाएगा चैप्टर अभी ड्रेनेज में। लास्ट ईयर तक ओनली मैप थे, क्लाइमेट वाला चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एंड देन नाजिज्म है, और हाँ नाजिज्म भी काफी टाइम कंज्यूमिंग है। अब हमको इस चैप्टर हिस्ट्री का ले रहे हो? क्या बेटा? हिस्ट्री का चैप्टर ले रहे हो? सेकंड सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ओके मैम। ठीक है, कंटिन्यू करें। यस मैम। एक मिनट, आज मुझे ना थोड़ा सा कुछ तुमको दिखाने की इच्छा हो रही है, देन आई विल कंटिन्यू। उससे ना काफी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। Grammarly does more than catch errors. उनके पास privileges हो, so they were okay. बहुत सी countries
स्टेट गवर्नमेंट हम आपने स्क्रीनशॉट नहीं किया है अभी। जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई है. एक मिनट. The Russian Revolution changed life. People could decide not support the suffragette movements either. एक मिनट. I will just show you a small video. So ये आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देगा, ठीक है? For a change. I don't know whether other teachers are showing you or not. Just wait a minute. The dawn of socialism promised peace and equality to all. Over the Russian Revolution changed life forever. Having replaced the rule by the monarchy, the dawn of socialism promised peace and equality to all. Over the next few modules, you will hear the story of the Russian Revolution. The story of how people decided to get rid of privilege and class division and create a society made up of equals. Ma'am, voice is too low. We learn about the revolution. I have kept the maximum voice which I can keep. For us to understand how socialism came to Europe. The French Revolution during the late 18th century was an important stepping stone for socialism, as it propagated the ideas of freedom and equality. It also gave hope to the people by showing them that it was possible to create a society where people could decide who controlled the economic and social power. These revolutionary ideas spread quickly across all of Europe. Even in India, eminent people like Raja Ram Mohan Roy and Derozio discussed the importance of the French Revolution. However, this we have seen in the previous chapter as well. Were divided on the degree of change that needed to be made to society. On a broad scale, these people could be divided into three distinct groups: liberals, radicals, and conservatives. Liberals dreamt of a nation where all religions could be considered equal. They were against giving absolute powers to the monarchy. चिल्ड्रन प्लीज ये थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लेते हैं और आपको एग्जाम में describe the liberals, describe the radicals, describe the conservatives, or sometime give the difference between liberals and radicals, radicals and conservative, liberals and conservative आता है. So ये तीनों बहुत important part हैं. Instead, they wanted an elected parliamentary government. But on the other hand, they believed that not everyone had the right to vote. Only property owners could be allowed to vote. They did not support the suffragette movements either. Suffragette movements campaigned to give women the right to vote. Radicals too agreed with the liberals on religious tolerance and the removal of the absolute powers from the monarchy. They, however, believed that all people had a right to vote irrespective of whether they were property owners or not. They also supported the right for women to vote. The third group of people, the conservatives, were opposed to change altogether. In time, they realized that some change was inevitable, but they still felt that it needed to be a gradual process. As you can see, the views differed greatly between these three groups. While these debates were going on, change was happening on the economic front too. The Industrial Revolution had started in Britain and it slowly spread across Europe. It saw the replacement of manual labor with machines, resulting in goods being manufactured at a much faster rate. The Industrial Revolution saw the formation of new cities, development of industrial regions, and the expansion of the railways,
As a result, more people went to work in factories. However, the working conditions were quite pitiable. Long work hours, coupled with low wages, demoralized the workers. Sometimes, the low demand for goods resulted in unemployment too. All this left the workers yearning for change. The solution was to stop the feudal system of privileges enjoyed by the aristocracy. Liberals and radicals rallied around the right of individual freedom, the right of the poor to work, and the right of people having money to operate without restraint. Revolutionaries across Europe. Sure. Now, this is first two topics which I gave it to you. Now I'll be starting with this. Yeah, this is your chapter. Okay, the age of social change. See, हम इस चैप्टर में पता है क्या पढ़ने वाले हैं एक्चुअली बेटा? देखो, जब हमने फ्रांस में देखा, फ्रांस में जब मोनार्की खत्म हो गया, पहले के जमाने में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो होते नहीं थे, सब जगह राजाशाही होती थी। जब एक फ्रांस में चेंजेस हुए, आपको पता है आपके आसपास में किसी के घर में भी कोई चेंजेस आपके एनवायरनमेंट में होता है, पीपल गेट टू नो अबाउट कि देयर इज दिस टाइप ऑफ थिंग्स कैन आल्सो बी हैपन। सेम थिंग हैपेंड विद दिस ऑल। तो ये जो चेंजेस आए तो उन लोगों को पता चला, अरे यार ऐसी भी जिंदगी हो सकती है जहां हम फ्री हो सकते हैं, अपने हिसाब के डिसीजन ले सकते हैं सोसाइटी की। सो जो फ्रांस में हो रहा था वो सब जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, स्पेन, इटली में भी सब ऐसी लाइफस्टाइल थी। तो ये हम लोग सोशलिज्म इन यूरोप यानी होल सोसाइटी का चेंज होने का प्रोस्पेक्टिव, एंड देन ये जो चेंजेस हैं वो रशिया में रिवॉल्यूशन कैसे लाए, ये चैप्टर ऐसे कनेक्ट होता है। ओके, in the previous chapter you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after French Revolution. क्योंकि हमने नहीं देखा था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, पहले फ्रांस के बाद ये सब हुआ था ना। The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. आया समझ में? यानी उसने ये देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो यूरोप में रहने वाले कंट्रीज थे और लोग थे, उनको समझ में आया था कि सोसाइटी कैसे स्ट्रक्चर हो सकती है, कैसे चेंजेस आ सकते हैं, ऐसा। As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into estates and orders, and it was aristocracy and church which control economic and social power. ये हमने पिछले चैप्टर में देखा था ना, 3 estates होते हैं, फिर एरिस्टोक्रेसी होते हैं, चर्च के पास मैक्सिमम, मतलब ये लोग ऐसे थे जिनके पास सबसे ज्यादा पावर रहते थे, पैसा और पावर, और सारा देश इनके हिसाब से ही चलता था। और उसमें पीजेंट्स, पुअर्स, लेबरर्स सबसे ज्यादा सफर करते थे। यानी सोसाइटी डिवाइड थे डिफरेंट डिफरेंट क्लास और कैटेगरी में, इक्वल राइट्स नहीं थे, कोई लोग बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस करते थे और कई लोगों के पास कुछ नहीं होता था, ऐसा। सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन it seems possible to change this. In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who control social power begin to be discussed. In India, Raja Ram Mohan Roy and Derizio talk about the significance of French Revolution, and many other debated the ideas of post-revolutionary Europe. The developments in the colony, in turn, reshaped these ideas of the socialist change. ये समझ में आया इंट्रोडक्शन क्या था? एक फ्रांस के बाद not only Europe but people living in many part of the world were able to get it कि लाइफ ये भी हो सकती है, ऐसी भी सोसाइटी हो सकती है, ऐसी भी कम्युनिटी हो सकती है जहां पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको इक्वल राइट्स हो, बट उसके लिए हमें फाइट करना पड़ेगा। Not everyone in Europe, however, wanted to complete transformation of society. Responses varied from those who accepted that some changes was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically. यानी ऐसे लोग थे जिन्होंने मान लिया हाँ भाई चेंजेस तो करने पड़ेंगे, बट वो क्या चाहते थे, थोड़े थोड़े और धीरे धीरे चेंजेस करो, और जो पुराना जनरेशन टू जनरेशन चला रहा है जैसे मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, चर्च,
आप रातों रात उसको सब बदल नहीं सकते। वो कंजर्वेटिव्स थे और उसके ऑपोजिट कुछ लोग ऐसे थे सोसाइटी में जो रेडिकल्स थे, जो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हो रहे थे। वो कंप्लीट चेंज चाह रहे थे, वो एक नई सोसाइटी चाह रहे थे जहां सब लोग इक्वल हो, इक्वल राइट्स हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, सब काम करें, सबको टैक्स भरना पड़े, ऐसे। मतलब वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते थे। Some were conservatives, other was radicals, liberals or radicals. What did these terms really means to the context of time? What separate these strands of politics and what link them together? We must remember that these terms do not mean the same thing in all context or the same. We will look briefly at some of the important political tradition of the 19th century and see how they influenced change. Then we will focus on the historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society. Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape the society in the 20th century. ये पूरा वही है जो अभी आपने वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है? तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे होगा। डिफरेंट तरीके के लोग थे, उनके डिफरेंट व्यूज थे। अब इन डिफरेंट व्यूज, यानी रेडिकल अलग सोचते थे, लिबरल्स अलग सोचते थे, कंजर्वेटिव्स अलग सोचते थे, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा था, लेबरर्स अलग तरीके की प्रॉब्लम्स थी। तो ये सबके साथ चेंज कैसे हुआ, ये पूरा चैप्टर इसके बारे में। नाउ लिबरल्स, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं, ईच को सेपरेटली डिस्क्राइब करने को आता है या 2 में कंपैरिजन आते हैं। समझ आया? ओके। Okay, liberals. One of the group which looked to change society were the liberals. यानी liberals ऐसे लोग थे जो सोसाइटी में चेंज चाहते थे। Understood? Liberals were that type of people who want change in the society. एक काम करती हूँ, देखो तो मुझे बताना तो बोर्ड कितना दिख रहा है आप लोगों को। बोर्ड दिख रहा है बेटा? हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है मैम। एक मिनट रुक जाओ। इसमें क्या करती हूँ बेटा, मैं मेन पॉइंट्स लिख देती हूँ। आया समझ में? तो थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ में कभी कभी ना बेटा समझ में नहीं आता है। पूरा पॉइंट्स होंगे और फिर आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लोगे ना तो आपको कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। ठीक है? अब देखो हम कैसे करेंगे। लिबरल्स वो लोग थे, एक मिनट में थोड़ा सा और ट्राई करती हूँ। ओ मेरा लैपटॉप गिरेगा। मैं बोलती जाऊंगी तो आपको कहीं नोट डाउन करना है तो कर लो साथ साथ में। ओके, लिबरल्स वर, सबसे पहली चीज क्या चाहिए था उनको? इनको क्या था? दे ऑपोज्ड, सुनो, दे ऑपोज्ड, उन्होंने किस चीज को अपोज किया था? दे ऑपोज्ड अनकंट्रोल्ड पावर्स ऑफ मोनार्की, यानी उनको राजाशाही नहीं चाहिए था। राजाशाही में अनकंट्रोल्ड पावर्स थे, यानी राजा एक सिंगल होता था जो सबका डिसीजन लेता था। सो ऑपोज्ड अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ, यानी उनको ऐसी राजाशाही चाहिए ही नहीं थी। इन शॉर्ट दे वांट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कि एक सिंगल राजा है जिसका सब कुछ चलेगा और उसके बाद उसका बेटा आ जाएगा गद्दी पे, उसके बाद उसका बेटा आ जाएगा, ऐसा नहीं चाहिए था। जो डिजर्व करता है वो गवर्नमेंट को लीड करे और कंट्री को चलाए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते जैसे। ओके, सो दे ऑपोज अनकंट्रोल्ड पावर्स ऑफ मोनार्की। उसकी जगह रेडिकल्स क्या सोचते थे, है ना? रेडिकल्स गवर्नमेंट चाहते थे। दे वांट गवर्नमेंट, सॉरी गवर्नमेंट की जगह वी कैन राइट अबाउट दे आल्सो ऑपोज्ड। इन्होंने किस चीज को अपोज किया? सिर्फ एरिस्टोक्रेसी को और लैंडलॉर्ड्स को, यानी जो अमीर लोग होते हैं ना, जिनके पास सारा लैंड और पैसा था, उनको राजा से इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। चलेगा, राजा है, अगर वो सिस्टमेटिक सरकार चलाता है तो चलेगा, बट
हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ सोसाइटी का एक पर्टिकुलर पार्ट हो जहां पे बेटा ऐसे डिफरेंस में समझ आ रहा है कि पहले सिर्फ एक के कैरेक्टरिस्टिक्स दे दूं, बिकॉज आधे लोग लॉस्ट लग रहे हैं। मैम पहले एक का दे दो, पहले एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स दे दूं। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, चलो अब इसमें लिबरल स्टार्ट करते हैं। ऑपोज्ड अनकंट्रोल्ड पावर्स ऑफ मोनार्की और डायनेस्टिक रूल। फिर दे वर टॉलरेंस टू ऑल रिलीजन, यानी उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था, आप ज्यूज हो, आप फ्रेंच, आप क्रिश्चियन हो, आप कैथोलिक हो, आप प्रोटेस्टियन हो, कोई फर्क नहीं, सब रिलीजन इक्वल थे। सो दे वर टॉलरेंस टू रिलीजन, दे वर टॉलरेंस टू रिलीजन, यानी उनकी नजरों में आप किसी भी धर्म को मानते हो, आपकी कंट्री में फ्रीडम होनी चाहिए किसी भी इंसान को कोई भी धर्म फॉलो करने के लिए। ओके, अब उनका मेन एम क्या था लिबरल्स का? सेफ गार्ड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी आपके जो फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, सेफ गार्ड करना जो भी इंडिविजुअल है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे डिसीजंस लो या ऐसे लॉस पास करो जो सोसाइटी में एक कम्युनिटी के लिए हो। जैसे पहले तो ऐसे होता था ना, एरिस्टोक्रेसी और चर्च के फेवर में ही सारे डिसीजंस होते थे, ऐसा नहीं। सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी हर इंसान को उसके जो भी राइट्स हैं वो ऑब्जर्व करने को मिले, यानी वो अपने राइट्स का यूटिलाइज कर सके। ठीक है, अब वो क्या चाहते थे? ये लिबरल्स वांट टू गिव द वोटिंग राइट्स, यानी सरकार बनाने में वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। किसको? ऑल मेन, सिर्फ आदमी औरों को, नो वुमेन। मेन में भी कौन सा? प्रॉपर्टीड मेन, यानी ऐसे इंसान जो जिसके पास प्रॉपर्टी हो और ज्यादा टैक्स पे करते हो, सिर्फ ऐसे ही लोगों को वोट करके सरकार बनाने का राइट मिलना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं, और वुमेन्स को तो बिल्कुल भी नहीं। यस। अब जो रेडिकल्स थे, दे अपोज्ड प्रिविलेजेस ऑफ वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स एंड लैंडलॉर्ड्स, यानी अमीर लोगों जो प्रिविलेजेस लेते थे, यानी जो मतलब उनकी लाइफस्टाइल थी, पीजेंट्स को कम सैलरी देना, वर्कर्स को कम सैलरी देना, तो भी गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती थी, तो वो उनके प्रिविलेजेस थे ना बेटा। यस मैम, नोबडी। तो सबको रॉन्ग अपोज किए कर रहे थे लिबरल्स, और ये सबको वोटिंग राइट देना चाह रहे थे। ऑल, वोटिंग फॉर ऑल, मेन विमेन, सबको। ओ नो, एक मिनट रुको बेटा। हाँ, वोटिंग राइट्स टू ऑल। देन दे वांट गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट चाहिए थी इनको? कोई भी गवर्नमेंट चलेगी, ऑल द गवर्नमेंट दे विल, बट बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। अगेन ये माइनॉरिटी को डिस्कार्ड कर रहे थे, कंट्री में जिस लोगों की मेजॉरिटी हो उसकी सरकार बननी चाहिए। यानी अगर आप रेडिकल्स का देखो तो वो पैसा और पावर थोड़े लोगों के हाथ में नहीं रखना चाहते थे। वो क्या चाह रहे थे? सबको अपॉर्चुनिटी मिले ग्रो करने की, डेवलप करने की, है ना, और सबको इक्वल राइट्स हो। यानी अगर सरकार बनानी है आपको, ठीक है, आपको सरकार बनानी है तो मेन विमेन सबको वोटिंग राइट्स होने चाहिए। सब लोग अपने वोट कास्ट करके एक इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाए जो इस देश को चलाए, और जब वो इस देश को चलाए तो ऐसा ना हो कि वो सिर्फ डिसीजंस लैंडलॉर्ड्स और वेल्दी पीपल के फेवर में ले। ओके, अंडरस्टूड? यस मैम। लास्ट रह जाते हैं आपके कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स ने सबसे पहले चेंज के आइडिया को ही नो बोल दिया था। दे डोंट वांट एनी चेंज ओनली, दे वर ऑपोज्ड ऑफ आइडिया ऑफ चेंज। बट धीरे धीरे जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, उन्होंने देखा कि चेंज एक्सेप्ट करे बिना पॉसिबल ही नहीं है।
कंजर्वेटिव में मोस्टली चर्च और एरिस्टोक्रेसी के लोग थे। शुरू में तो उन्होंने चेंज के आइडिया को ही मना कर दिया, बट देन दे रियलाइज कि चेंज करे बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। सो लेटर ऑन दे एक्सेप्टेड कि चेंज चलेगा, बट दिस चेंज शुड बी स्लो, ग्रेजुअल, धीरे धीरे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जनरेशन से, सालों से, सेंचुरी से जो पैटर्न चला है वो कभी भी ऐसे फ्लिप नहीं हो जाता, बिकॉज उनको इनसिक्योरिटी थी कि सडनली अगर सब लोग इक्वल, उन्हें तो आदत पड़ चुकी थी ना कि वो अपर क्लास हैं, वो दूसरे लोगों को डोमिनेट करेंगे। अब जब इक्वालिटी आ जाएगी तो किसको डोमिनेट करेंगे, किसको प्रेशराइज करेंगे? तो उनको क्या चाहिए था? बिलीव इन प्रिजर्विंग एंड रिस्पेक्टिंग द पास्ट। उनका ये मानना था कि आप पास्ट को छोड़ नहीं सकते, हमें उनको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, चेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, चेंजेस अडॉप्ट करने पड़ेंगे, बट वेरी स्लो एंड ग्रेजुअली, सो दैट द पास्ट इज नॉट डिस्टर्ब। यानी वो सारे अपने पावर्स छोड़ने को तैयार नहीं थे, थोड़ा बहुत चेंज एक्सेप्ट करने को तैयार थे, बट सारे अपने पावर्स छोड़ने को तैयार नहीं थे। अब ये लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स का एक पैराग्राफ दिया है आपकी बुक में, पॉइंट 1.1। अब मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि जो मैंने पॉइंट्स दिए वही हैं, सिर्फ लास्ट कंक्लूजन का पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। Such differing ideas about societal change clashes during the social and political turmoil that followed the French Revolution. The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits of potential of these political tendencies. यानी अब naturally 3 टाइप के लोग हैं सोसाइटी में, कंजर्वेटिव्स है, रेडिकल्स है और आपके लिबरल्स है। तो सोसाइटी में क्लैश होना तो जायज है, आपस में लड़ेंगे ही लड़ेंगे, बिकॉज 3 डिफरेंट थॉट के लोग इकट्ठे हो गए। यस Yes. अब देखो क्वेश्चंस कैसे बन के आते हैं। डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ रेडिकल। व्हाट वर द व्यू पॉइंट ऑफ कंजर्वेटिव्स? फिर how do the society according to the liberals and radical develop? According to liberals and radical develop means आपको दोनों को कंपेयर करना है। आया समझ में? मैम पर अगर हमें कोई सेम एक ही रूल बनाना है तो मैम इन तीनों के तीनों का में से एक रूल कलेक्ट करके हम बना सकते हैं ना? क्या कलेक्ट करके बना सकते हैं मैम? जैसे लिबरल्स में से दे अपोज द टू मोनार्की। बेटा 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, तुम एक ही पॉइंट लिख के आओगी। ये क्वेश्चन मिनिमम 3 मार्क्स के आएंगे। ओके मैम। मिनिमम 3 मार्क्स के, 5 मार्कर में जल्दी आते नहीं, पर मिनिमम 3 मार्क्स के। 1 मार्कर में कभी कभार पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रेडिकल्स, तो आप एक आध पॉइंट लिख सकते हो, पर मोस्टली ये क्वेश्चन 3 मार्कर्स में ही आते हैं। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के क्या बेनिफिट्स थे, क्या प्रॉब्लम्स वर्कर्स और लेबरर्स फेस कर रहे थे, उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट और इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, बाय बाय मैम। आपका क्लास होगा ना इसके बाद? यस मैम। यस कहाँ गए मैम? ही गायब हो गए। मैम नहीं है मैम। हाँ आए, सब आए एक ही साथ अंदर। मुझे होस्ट बनाना है किसी को, इसलिए। मैम भोपाल भगवान को हाँ बना हाँ दो मैम। दिख गया बेटा, दिख गया।